that represents this wonderful friendship through cricket between India and Australia. I now humbly request the Honourable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, to do us the honours and hand over the test caps to the team captains. Steve Smith will collect the cap from the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. And Rohit Sharma likewise will get his cap from the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji. Captains, I'd now like to request the two Honourable Prime Ministers to do the lap of honour. And that will be around this magnificent stadium in front of a huge crowd. Because cricket today is a religion that binds the people of all nations. Border Gavaskar Trophy has been one of the highest impact and dominant duels in the world of cricket. But today we are here to celebrate something even more special, as the two Honourable Prime Ministers do the lap of honour. And what's special, it's 75 years of friendship through cricket. 75 साल क्रिकेटिंग दोस्ती को हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर वर्ल्ड के स्तर पर देखें तो इन दोनों देशों की डिप्लोमेसी बहुत असर डालेगी पूरी दुनिया पर, और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत खास। That coin is in the hands of was in the hands of Chris Broad, now in the hands of the home captain Rohit Sharma. Steve Smith still captain of Australia. Rohit, your call. Heads is the call from Steve. It is a head, Steve. You won the toss, and you're going to. We're going to have a bat. And your side for today, Steve? Same team. The surface looks a bit different. What do you make of it? Yeah, it does. It looks like a nice surface. Yeah, it's hard to say until we get out on the middle, but yeah, it does look like a good wicket. And you're still happy playing three spinners? It's a different approach for the Australian side? Yeah, it is. You know, I think the guys have performed really well last week. You know, I still think this wicket will take spin as the game goes on. So, yeah, we'll see how we go. You said it could be your last test in Australia, in India. Surely you're not serious? I don't know. I'm getting older, so it's 4 years away. It's a long time. We'll wait and see. Go well, Steve. Thank you. Cheers. Right, Rohit Sharma alongside me. You might have batted first too, wouldn't you? Yeah, we would have. But I guess we know what we're doing now. We've got to come out and do that well. And your side for today? Yeah, we've made one change. Siraj has been rested, and we've brought back Shami. Now, there's been a long time between the end of the last test match and the start of this one. Is that good? Does it allow you to forget what happened? How does that work for you? Yeah, no, I think it's always nice to have some time off, understand what we did right, what we did wrong, just to regroup, you know, as a team. Always nice to have that time off. You can reflect on so many things as well. But yeah, we prepared really well for this one. Hopefully we can get what we want here. And your take on the surface you're playing on today? Yeah, I mean, not the surface what we saw in the first 3 test matches. It looks like a very good. तो ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है, जहां पर 2 देशों के प्रधानमंत्री इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त उस बैगी कैप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सौंपा और एंथनी अल्बनीज ने वही कैप स्टीवन स्मिथ को दी। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है, यानी कि पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी। हालांकि अभी समारोह को लेकर कई और तस्वीरें आना बाकी हैं। कई लोग इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस मैच में कमेंट्री भी कर सकते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं होता है, फिलहाल ये देखने वाली बात है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे वहां पर। ये उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आते हैं और यहाँ पर जब वो पहुंचे थे तो उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कई लोग पहुंचे। और ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो एग्जीबिशन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा डेलीगेट जो है इनके साथ मौजूद है। और अब तक 75 साल का जो पूरा इतिहास रहा है दोनों देशों का, क्रिकेटिंग इतिहास, उस पर एक नजर। आप देखिए कैसे वहां पर रवि शास्त्री जो है वो सारी चीजों को एलोब्रेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जिन भी साइट पर जाते हैं उसका अवलोकन करते हैं। ये उनकी चित परिचित तस्वीरें हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कि क्रिकेटिंग स्किल्स वो तो मैदान में देखने को मिलेगी, लेकिन जो पिक्चर्स के फॉर्म में या जो फोटोज के फॉर्म में है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ एंथनी एल्बनीज़ मौजूद है और दोनों देशों के जब प्रधानमंत्री, आप देखिए कितने सहज भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक चेंज इस मुलाकात के बाद, इस पूरे कार्यक्रम के बाद आ सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये दोस्ती की एक नई पारी है। 75 साल हो चुके हैं दोनों देशों को क्रिकेट खेलते हुए। 1948 से ये क्रिकेटिंग दोनों देश के बीच में शुरू हुई थी। कई बार कई मौकों पर बड़ी राइवलरी देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में। अगर हम वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी प्रगढ़ रहे हैं और क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। लिहाजा आप देखिए कि कैसे ये दोनों देशों के जब प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, कितने सहज भाव के साथ अवलोकन किया जा रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर जो फोटो गैलरी है जिसमें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग इतिहास को संजोया गया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और जो चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पर एंथनी एल्बनीज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बहुत सहज है। अगर दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते की बात करें, ये कितना मजबूती दे सकती है ये मुलाकात या ये पूरा इवेंट? चलिए, हो सकता है कि सिद्धार्थ तक आवाज ना पहुंची, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार किया। आप देखिए, उस रथ पर सवार थे एंथनी एल्बनीज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बड़ी संख्या में क्रिकेट के प्रशंसक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक वहां पर पहुंचे हुए थे और पीएम ने निराश नहीं किया। आप देखिए उस रथ पर सवार होकर कैसे लोगों की उत्सुकता जब थी उन्हें लेकर, तो उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये फोटो गैलरीज, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी उस फोटो गैलरी का अवलोकन करते हुए, दरअसल हर क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास को संजोए हुए इस तरह की फोटो गैलरीज होती हैं और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग इतिहास पिछले 75 सालों में कैसा रहा है, इसे खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी एल्बनीज़ इसका अवलोकन कर रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ गए। सिद्धार्थ, ये तस्वीरें जिसमें कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री बहुत सहज नजर आ रहे हैं, ये दोनों देशों की दोस्ती वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत अहम तस्वीरें, क्या एक नया आयाम ये गढ़ने जा रही हैं तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, मौका है, माहौल है और दस्तूर भी है। ये तीनों चीजें अभी एक साथ में है। क्रिकेट भी है, क्रिकेट के साथ में क्रिकेट की डिप्लोमेसी भी है, डिप्लोमेसी के साथ साथ में देशों के आपसी संबंधों की बात भी है। ये सारी चीजों का जब समागम होता है तब वो आके रुकता है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहां लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इंडियन टीम को भी सब बैक कर रहे हैं। जहां तक बात की आपने संबंधों की, जी हां, यकीनन इन संबंधों की शुरुआत कल जब एंथनी एल्बनीज़ पहुंचे थे 4 बजे कल शाम को, तो गांधी आश्रम सबसे पहले वो गए, वहां से शुरुआत होती है। देखिए, उसके बाद उन्होंने होली भी खेली। वो राजभवन पहुंचे, वहां पे राज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद थे। उन लोगों के साथ में होली का एक समारोह रखा गया, वहां उन्होंने शिरकत की। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और बहुत सारे संगठनों से भी मुलाकात की, बहुत सारे एनजीओ से भी मुलाकात की, सरकार से जुड़े हुए लोगों से भी बात की। उनके एम्बेसडर्स यहाँ पे थे, उनके फ्लैग बेरर्स यहाँ पे थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कितना अहम और आने वाले दिनों के अंदर ये संबंध किस स्तर पे जाने वाले हैं। और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि जब लाखों की संख्या में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पे हो, जहां 1,10,000 कैपेसिटी 63 एकड़ के अंदर फैला हुआ और दुनिया की सारी फैसिलिटी आप गिन लीजिए। मेलबर्न इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम गिना जाता था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पर आप देखिए
देखिए अब वही उसी स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो ताज हमने उनसे छीना और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्टेडियम, विशालकाय स्टेडियम यहाँ पे है। तो बिल्कुल जो आपने बात कही वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि जो डिप्लोमेसी है वो भी आगे बढ़ेगी। बहुत सारे मुद्दों पर समझाया। मैं एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करता हूं, जब दो देशों के बड़े नेता, भले ही मौका कितना भी कैजुअल क्यों ना हो, भले ही क्रिकेट देखने का ही मौका क्यों ना हो, जब वो दोनों साथ बैठेंगे तो जाहिर बात है कि दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बातें होंगी। और मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा नीति की चर्चा पूरे विश्व में। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और भारत की, ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से भारत का एक ऐसा काउंटर पार्ट माना गया है कि किसी भी परिस्थिति में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ खड़ा रहा है। और इसके पीछे जो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, जयशंकर जी की हो या पीएम मोदी जी की हो, उसे हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। वो लगातार चल रही है। एक मुद्दा जो बिल्कुल सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे आप भी बेहतर जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, कि जो स्वामीनारायण के मंदिरों पर लगातार ऑस्ट्रेलिया में हमले हो रहे हैं। चूंकि स्वामीनारायण का एक बड़ा संप्रदाय, सबसे बड़ा संप्रदाय गुजरात से ही आता है, तो यह भी बार बार अटकलें लग रही थी क्या इस विषय पर भी बात होगी। तो ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं और इस चीज को लेकर के कड़ा रुख ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनाया था कि इस तरह के हमलों की वो भर्त्सना करते हैं जो स्वामीनारायण मंदिरों पर वहां किए जा रहे हैं, और एंटी इंडिया स्लोगन्स जो लिखे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग एरियाज के अंदर। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये चीजें बढ़ी हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं जो सोर्सेज, सूत्र हमें बताते हैं कि इस बारे में भी कहीं ना कहीं बात हुई है और इस बारे में बैकडोर टॉक्स चल रही हैं और इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। ये यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये यहाँ से आगे जाएगा। यानी ये जो दोस्ती है क्रिकेट के साथ में आगे बढ़ती हुई, ये एक अलग आयाम पर पहुंचेगी। आप याद कीजिए, जब नेतन्याहू हुआ करते थे और इजराइल के साथ संबंध हमारे अच्छे होना चालू हुए, तब उनके प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना और पीएम मोदी के साथ में उनका एक जो तालमेल था, एक जुगलबंदी थी, एक आपसी सहमतियों के साथ जो बातचीत करने का तरीका था, उसका फायदा भारत को आने वाले टाइम में मिला। और यही ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, क्वाड के देशों की बात करें, एशियान देशों की बात करें, जो बड़े बड़े संगठनों की बात करें हम, उसके अंदर अगर देखते हैं तो भारत के साथ लगातार जो खड़े रहने का काम किया है, क्योंकि इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड चाइना को लेकर बहुत क्लियर रहा है और पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा मुखर रहा है। कई ऐसे देश रहे हैं जो चाइना की मुखालफत करते हैं, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वॉर ड्रिल भी की है और उनके एरियाज में सबमरीन्स भी लगाए ताकि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना वहां पर पूरी तरह से अलर्ट रह सके। तो क्या उस लिहाज से चाइना के लिए एक मैसेज है, जिस तरीके से आज दोनों देशों के प्रधानमंत्री ये मैच देख रहे हैं? ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और अगर आप अहमदाबाद इस वक्त आए और इस वक्त अगर आप अहमदाबाद के स्टेडियम के बाहर खड़े रहें, तो ये जो जनता जा रही है, ये जनता ही बांधती है, लोगों को बांधती है, और लोगों के बंधने से ये चीजें और आगे बढ़ती हैं। और देशों का 1-to-1 जो कॉन्टैक्ट है, वो देशों का कॉन्टैक्ट 1-to-1 अपने आप में ये बताता है कि आखिर संबंध कितने ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। जहां तक आपने चाइना की बात की, बिल्कुल सही बात है। चाइना के अलावा भी जो स्टैंड रहा है दूसरे देशों के साथ में, या फिर पाकिस्तान की हम बात कर लें, या फिर दूसरे अरबिक देशों की हम बात कर लें, जहां जहां भारत के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत पड़ी जो उसके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सके, एक मंच पर एक आवाज बुलंद करके हम आवाज हो सके। वो हम आवाज की जो ताकत है, या उस हम आवाज की जो सबसे बड़ी गूंज निकल करके आती है, वो ऑस्ट्रेलिया से आती है। और यही बात ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं अपने ट्वीट में भी, और कल भी जब वे यहाँ पे आए थे गांधी आश्रम के अंदर भी जब वो गए, तो उनका मैसेज था वो भी बड़ा स्पष्ट था। अगर आप उस मैसेज को भी पढ़ें, उसके अंदर उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। और कल भी जब हम बात कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, उनके कई सारे अधिकारी, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं, एम्बेसडर्स आए हुए हैं, तो हमारी लगातार उनसे जब चर्चा होती है ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया अपना फ्यूचर देख रहा है। आप माइग्रेशन देखिए, आप याद कीजिए, एक ऐसा समय था जब बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए होड़ लगी हुई थी। गुजरात से, आप मानेंगे नहीं, बड़ौदा जो शहर है, बड़ौदा गुजरात का, वैसा का वैसा ही एक शहर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जिसे स्मॉल बड़ौदा कहा जाता है, मिनी बड़ौदा कहा जाता है। अब ये जो संबंध है, चूंकि ये भी बात कही जाती है कि बैरन लैंड, खाली लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनीज और लोग बड़ी संख्या में वहां पे आए। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर के अगर आप देखें, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी है ब्रेट ली, वो भी बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों को बसाने का काम करती है। वो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है। तो ऐसे बहुत, स्टीव वॉक का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, पूर्व महान कप्तान ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉक, उनका जो बड़ा फाउंडेशन था, उन्होंने भारत में बहुत सारे काम किए हैं, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, भारत में लोगों के लिए बहुत सारे काम किए।
के। तो देखिए, शुरुआत जो होती है, बीज डलता है, बीज जब वट वृक्ष बनता है वो एक अलग परिस्थिति होती है। और अब इतने साल की 75 सालों की जो दोस्ती है अब एक वट वृक्ष बनने के स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है, भले ही वो खेल हो, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब सत्ता परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके बाद से, और बल्कि उसके पहले से ही, मैं तो ये कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर कोई नेता यह चाह रहा था कि हम भी उनसे स्टेज साझा करें, हम भी भारत में जाएं और भारत में जाके हम भी अपना दबदबा दिखाएं, हम भी अपना वर्चस्व दिखाएं, हम भी दिखाएं कि हाँ, हम भारत के साथ में हैं। क्योंकि अब आने वाला भविष्य भारत का है, ये बात न केवल भारत जानता है पर आसपास के सारे देश जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, चाइना का एक विकल्प देखते हैं, वो भारत की ओर बिल्कुल, जिसे कहें कि जिस तरीके से आपने समझाया, और जो दोनों देशों के इक्वेशंस हैं, उनके रिश्ते हैं, और आज के समय में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के जानिब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत क्लियर मैसेज दे रही है उन देशों के लिए जो कुछ देश इकट्ठा होकर भारत विरोध में बोलते हैं वैश्विक पटल पर, या फिर अपने एजेंडे को चलाने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है। लेकिन सिद्धार्थ, वहां पर आप जरा एक बार प्रशंसकों की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, बाहर अभी किस तरह की भीड़ है, क्योंकि मैच अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। टेस्ट मैच जिसमें टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया करने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाएं एक बार फिर। देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों मैं एक बहुत एक जबरदस्त चीज जो मैंने यहाँ पे देखी, हम सुबह लगभग 6:30-7 बजे से यहाँ पे हैं और अभी तक लोगों के आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आकर के चले गए हैं और अभी भी लोगों के लगातार आने का सिलसिला बना हुआ। ये देखिए, एक के बाद एक भीड़ की भीड़ लोग आते हुए, अपने हाथ ऊपर करके अभिवादन करते हुए, कैमरे पे जाकर मुस्कुरा कर देखते हुए। क्रिकेट हमारे यहाँ पे एक त्योहार है और सबसे अच्छी बात है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो बात यह है कि इस मैच के बहाने एक तरह से कमबैक किया है टेस्ट मैचेस ने भी। जी हाँ, टेस्ट मैचों को बड़ा बोरिंग माना जाने लगा था। T20 का दौर है, छक्के चौकों का दौर है, 20 ओवर में मैच खत्म, 3 घंटे में सब घर। पर अब टेस्ट मैचेस को लेकर के ये सारे लोग आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, हजारों की संख्या में लोग अंदर पहुंच चुके हैं और ये संख्या अब आने वाले टाइम में बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।